Welcome to Study Unscripted. Myself Saket, and we are going to start a new chapter that is from class 12th and named Ecosystem. This chapter is included in the unit Ecology, and we are going to start with the topic 12.1 Ecosystem Structure and Function, then Productivity, later on Decomposition, Energy Flow, and the Ecological Pyramids. Now keep in mind, 3 topics has been deleted from this book and also from the syllabus of NEET examination as well as from the boards. And these 3 topics are: first, the ecological succession, then the nutrient cycle, and the last is the ecosystem services. This has been deleted. So let's get started. An ecosystem can be visualized as the functional unit of nature. So highlight this. Ecosystem can be visualized as the functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding, and the surrounding is the physical environment. Now keep in mind, this ecosystem, the term जो है ये ecosystem, this is nothing but the working aspect of ecology. Working aspect of ecology. Now the ecosystem varies greatly in size from a small pond to a large forest or a sea. So ये जो है वो एक pond हो या large forest हो या एक sea हो, all are included in the ecosystem. Many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem. So this is important line. Many ecologists regard the entire biosphere as the global ecosystem, as a composite of all local ecosystem on the earth. Now the next line. Since the ecosystem is too big and complex, so this is divided into 2 basic units, and these basic units are: the first one is the terrestrial and the second one is the aquatic. Now what are the examples of the terrestrial ecosystem? Terrestrial ecosystem यानी कि जो जमीन पे होते हैं, सोइल पे होते हैं. So these are the forest, grassland, deserts and some example of the terrestrial ecosystem, ये जो होते हैं. Now aquatic example कौन से हैं? They are pond, lakes, wetland, river and the estuary are some of the example of the aquatic ecosystem. Now यहाँ पे देखो जो crop field है, crop field and many aquariums may also be considered as a man-made ecosystem, and this is the example which is asked in the various type of test and mock tests. So highlight this. Crop field and the aquarium are the man-made ecosystem. बाकी जो हमने ऊपर देखा, this is the natural ecosystems. Now when we look at the structure of these ecosystems, in order to appreciate the input, productivity and transfer of energy, में कौन से points include होंगे? Food chain, food web, nutrient cycling which is removed from the syllabus current edition में, and the output क्या होता है? ये जो transfer of energy का output क्या होगा? That will be the degradation and the energy loss. We will also look at the relationship between the cycles, chains, waves that are created as a result of this energy flow within the system and their interrelationship. Now what is the interrelationship का मतलब? यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कि 2 या 3 जो भी हैं उनके बीच का रिलेशनशिप. अगर यहाँ पे इंट्रा रिलेशनशिप होता यानी कि किसी एक सिस्टम के अंदर की रिलेशनशिप को हमें समझना होता. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड ऐसे टर्म्स को, बिकॉज अगर ये एग्जाम में आते हैं तो यू माइट गेट कंफ्यूज. ओके, सो कीप इन माइंड इंटर रिलेशनशिप. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. This is the first topic, that is 12.1 ecosystem structure and functions. So first read this. In earlier classes we have looked at the various components of the environment, and these various components are the abiotic and the biotic, yani ki non-living and the living. Okay, as you studied in the individual, biotic and abiotic factors affected each other and the surrounding. Individuals, biotic and abiotic factor affected each other and the surrounding. This is important statement, तो highlight कर लो. Now let us look at these components in more integrated manner and see how the flow of energy takes place within these compounds of the ecosystem. Now this is very clear कि अब हमें समझना है कि कैसे दोनों आपस में related है और कैसे living और non living आपस में एक दूसरे को affect कर रहे हैं, उनके factors affect कर रहे हैं इनके surroundings को भी. So the interaction of biotic and abiotic component result in a, अब ये क्या में रिजल्ट करता है? This results in a
physical structure that is characteristic of each type of ecosystem. Now, identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem give its a species composition. ठीक है? So the vertical distribution of the different species occupying a different level, that is called stratification. Now what is the vertical distribution? Vertical distribution means कि उसके लंबाई के हिसाब से समझ लो. ठीक है? सो दिस इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो बिग ट्रीज होंगे उनके पास कैनोपी होंगी, जो स्मॉल ट्रीज होंगे उनके पास छोटी कैनोपी होंगी, जो प्लांट्स होंगे वो अंडर द कैनोपी ऑफ ए स्मॉल ट्री होंगे, और जो फंगी होंगे, लाइकेंस होंगे और नीचे होंगे. ठीक है, अलगी फंगी एंड लाइकेन. सो द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफिकेशन. नाउ कीप इन माइंड, यहाँ पे हमने देखा डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कैसे रिलेट कर रहे हैं. फिर यहाँ पे हमने एक दूसरा टर्म देखा, दैट वॉज द स्ट्रेटिफिकेशन. Now, for example, tree occupied top vertical strata or a layer in a forest. हमने देख लिया. Shrub the second and the herb and the grasses occupied the bottom. So इसने क्या बोला? इसने बोला tree, उसके नीचे बोला shrubs, उसके नीचे बोला इसने herbs and grasses. So this is the stratification. So the component of the ecosystem are seen as to function as a unit when we consider the following aspect. So वो जो component जो एक function की तरह काम करते हैं, एक unit की तरह काम करते हैं, वो है first the productivity, decomposition, energy flow and the nutrient cycle. यानी कि पहले plant based food product produce होंगे, फिर उनका अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो उनका decomposition होता है, फिर डिकम्पोजिशन के बाद उसका एनर्जी फ्लो होता है, और फिर एनर्जी फ्लो के बाद उसकी न्यूट्रिएंट को रिसाइकल किया जाता है. यानी कि जहाँ पे भी कोई न्यूट्रिएंट कम है या ज़्यादा है तो उसको एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कराया जा सके जितनी ज़रूरत जहाँ पे होती है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. सो टू अंडरस्टैंड द इथॉस ऑफ द एक्वाटिक ecosystem, let us make a small pond as an example. This is fairly a self-sustainable unit and rather a simple example to explain even the complex interactions that exist in the aquatic ecosystem. तो देखो एक पॉन्ड जो होता है, लेट मी हाईलाइट दिस, ये सेल्फ सस्टेनिंग होता है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल. सो अ पॉन्ड इज अ shallow water body in which all of the above mentioned four basic of the component of ecosystem are exhibited. What were the four basic component? That was the productivity, then the decomposition, then the energy flow and the nutrient cycle. So the abiotic component यानी कि जो non living है is the water with all the dissolved inorganic and the organic substances. Okay, तो यहाँ पे लिख लो abiotic, organic and inorganic and rich soil deposit at the bottom of the pond. Now the solar input, the cycle of temperature, day length and other climatic condition regulate the rate of function of entire form. So you can say that कि यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि हु आर दे जो रेगुलेट करते हैं रेट ऑफ फंक्शन ऑफ एंटायर पॉन्ड. ठीक है, सो दीज आर रेगुलेटेड बाय सोलर इनपुट, कितनी सोलर एनर्जी पहुंच रही है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे की लेंथ क्या है और उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है उसके आसपास की. सो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है. नाउ द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट इंक्लूड, इसको भी हाईलाइट कर लो. ऑटोट्रॉफिक में इंक्लूड क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन, सम अल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड द marginal plants found at the edges. The consumers are represented by the zooplankton. Now you can say that कि यहाँ पे जो producers हैं, these are the phytoplanktons and the algae. These are the producers. Now जो consumer है यहाँ पे, these are the zooplankton. These are the consumers and the free swimming and the bottom dwelling forms. ठीक है, अब ये जू प्लैंकटन के फॉर्म्स के बारे में बता रहा है, दैट इज फ्री स्विमिंग एंड द बॉटम ड्वेलिंग. नाउ द डिकम्पोजर आर द फंगी. अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोज करते हैं, दीज आर द फंगीज, बैक्टीरिया
and the flagellate especially abundant in the bottom of the pond. So let us highlight this. Decomposers are fungi, bacteria, and flagellates especially abundant at the bottom of the pond. तो हम ये जो एग्जांपल देख रहे हैं इसमें हमें ये पता चलता है कि ये टोटल एज अ सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी हो या डिकम्पोजिशन हो, फिर एनर्जी फ्लो होगा या न्यूट्रिएंट साइकिल होगा, तब ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है. अब वो नेचुरल हो या मैनमेड हो डिपेंड करता है. इफ इट इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द नेचर देन इट इज नेचुरल. अगर वो एक्वेरियम है या कोई क्रॉप फील्ड है सो दैट इज मैनमेड. सो द सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल. दैट इज कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक. देखो तो यहाँ पे जो तुम्हारा एनर्जी फ्लो होगा तो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द sun by the autotroph. Now consumption of the autotroph by heterotroph, decomposition and mineralization of the dead matter to release them back to the back for use by the autotroph. So these events are repeated over and over again और इसी को हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो. ठीक है. So इस पैराग्राफ में दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट ये the conversion of inorganic into organic material with the help of, किसके हेल्प की वजह से होता है ये, with the help of radiant energy of the sun by autotrophs. ठीक है. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, there is unidirectional movement of energy towards the higher trophic level. यानी कि from फाइटोप्लैंक्टॉन्स टू द जू प्लैंक्टॉन्स एंड लेटर ऑन जिसको जो भी वो जू प्लैंक्टॉन को कंज्यूम करेगा, सपोज करो कि वो कोई फिश कंज्यूम कर रहा है, सो दिस इज हैपनिंग अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. और ये 10% रूल को फॉलो करता है विच वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट टॉपिक. एंड इट्स डिसिप्शन एंड द लॉस ऑफ हीट टू द इन्वायरमेंट. ये यूनिडायरेक्शनल जो फ्लो होता है एनर्जी का, वहाँ पे कुछ लॉस भी होता है, वो रेस्पिरेटरी लॉसेस बोलते हैं. अब वो हीट में लॉस हो या जो भी इन्वायरमेंटल लॉस हो तो उसको हम देखने वाले इन द नेक्स्ट टॉपिक. Now the topic 12.2, that is the productivity. So let's see this topic. A constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain. So what is the primary production? So this is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period. And this is happening when during the photosynthesis by the plant. और इसको एक्सप्रेस किया जाता है in the terms of weight, that is gm to the power minus 2, या energy that is kilocalorie m to the power minus 2. So we have seen कि प्राइमरी प्रोडक्शन किसे बोलते हैं. that is nothing but the अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस्ड होता है यूनिट एरिया में ओवर अ टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. सो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी प्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी. सो प्रोडक्टिविटी जैसे टर्म साउंड कर रहा है, यहाँ पे अगर तुम रेट इंक्लूड कर दो सो दिस विल बिकम द प्रोडक्टिविटी. सो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन. तो तुमने जो यहाँ पे टर्म्स जो यूज किए थे प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल वेट के लिए तुमने जो यूज करा था दैट वॉज ये था ना वेट के लिए. अगर तुम इसमें ईयर इंक्लूड कर दो या टाइमिंग सो दिस विल बिकम द प्रोडक्टिविटी. ठीक है. एंड अगर तुम एनर्जी के टर्म्स में यूज करो सो दैट विल बी इक्वल टू किलो कैलोरी एंड पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई ईयर. सो ये दे रखे हैं वो एनसीईआरटी में. हियर इट इज. नाउ it can divided into the gross primary productivity that is GPP and the NPP that is the net primary productivity. किसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन को. सो द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. तो इसे हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में बोल रहा है. Now, the considerable amount of GPP, gross primary productivity, is utilized by the plants in the respiration या कोई loss हो रहा है. So this gross primary productivity minus the respiratory losses that will become the net primary productivity available. Okay, so ये फॉर्मूला है GPP minus R is equal to NPP and ये PYQ भी है.
सो कीप इन माइंड इसमें तुमने क्या समझा, दिस वॉज द जीपीपी, ये टोटल प्रोडक्टिविटी था, प्राइमरी प्रोडक्शन था, एंड इसमें से जो रेस्पिरेटरी लॉस हुए और जो बच गया फॉर द नेक्स्ट, उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो भी अवेलेबल बचा आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल टाइप ऑफ लॉसेस. ओके, सो what is the net primary productivity? It is the available biomass for the consumption of the heterotrophs, और heterotrophs हैं herbivore and the decomposers. सपोज करो किसी प्लांट को किसी ने हर्बीवोर एनिमल ने खा लिया, सो उसको कौन सी एनर्जी अवेलेबल हो रही है, दैट इज द एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. या अगर वो प्लांट डिकम्पोजर्स उसको खत्म कर दे रहे हैं तो उसमें भी एनपीपी कंज्यूम हो रही है. सो द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स. नाउ सपोज करो कि ये जो एनपीपी यूटिलाइज करने के बाद जिस हार्बीवोर ने यूटिलाइज करा, उसने सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कराई, बिकॉज ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो था ये इंक्लूड कर रहा है न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स, न्यू ऑर्गेनिक मैटर्स बाय कंज्यूमर. Now the primary productivity depends on the plant species inhabiting in a particular area. It also depends on the variety of environmental factors. So let us highlight this. Primary productivity depends on plant species inhabiting in a particular area, also depend on the variety of environmental factors. Availability of nutrient है, photosynthetic capacity है plant का. So these all are including ये factors हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. सो यहाँ पे लिख लो तुम डिपेंडेंट. सो यहाँ पे जो पार्टिकुलर एरिया टर्म यूज करा है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पार्टिकुलर एरिया टर्म इसलिए यूज करा है. फॉर एग्जाम्पल अ प्लांट इज प्रेजेंट इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो वहाँ पे इसके पास अवेलेबल होंगे, सब कुछ अवेलेबल होंगे इन टर्म्स ऑफ फेवरेबल कंडीशंस. एंड अनदर प्लांट सपोज करो कि वो कैक्टस है, वो किसी रेगिस्तान में, दैट इज प्रेजेंट इन द राजस्थान. सो यहाँ पे दोनों की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी काफी हद तक अफेक्ट हो जा रही है. सो कीप इन माइंड, therefore it varies in different type of ecosystem. now यहाँ पे नेट एनुअल के बारे में बात करने जा रहे हैं. so the annual net primary productivity of the whole biosphere, that is equivalent या approx है 170 billion tons. now don't get confused between the billion and the million. यहाँ पे बिलियन टर्म्स का यूज हो रहा है बी, एंड ये ड्राई वेट की बात कर रहा है, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग द 70% ऑफ द सरफेस. कौन? ये टेरेस्ट्रियल, ठीक है, ये होल बायोस्फीयर की तूने बात की, होल 170 बिलियन टन्स. बट तुम्हें पता है जो टेरेस्ट्रियल होता है दैट ऑक्यूपाइज 70% ऑफ द सरफेस. सो द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, sorry, let me erase this. On this, despite occupying 70% of the surface, 70% surface oceans cover करते हैं, ठीक है. So the productivity of the oceans are only 55 billion tons. So you can imagine कि after covering the 70% area, it is able to only produce 55 billion tons. तो तुम कह सकते हो कि 115 बिलियन टन्स ये प्रोडक्टिविटी है टेरेस्ट्रियल की, आफ्टर ऑक्यूपाइंग ओनली 30%. जिसमें भी लाइक तुम्हारे डेजर्ट्स हैं एंड आर्टिक्स हैं जो कि लेस प्रोडक्टिव होते हैं, इनमें से भी, ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिकम्पोजिशन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज द कंफ्यूजिंग पार्ट इस चैप्टर का. सो लेट्स रीड दिस. यू हैव हर्ड of the earthworm being referred as the farmer's friend. So earthworm is the farmer dost, ठीक है. This is because they help in the breakdown of the complex. So let us highlight this. Help in the breakdown of the complex organic matter as well as in loosening of the soil. यानी कि aeration करते हैं of the soil. जब वो move करते हैं inside the soil, so they create a minute pores. Because of this, air enters into the soil and helps in the better fertility of the land. Okay. Similarly, decomposers break down the complex organic matter into the inorganic substances like the carbon dioxide, water, and the nutrient, and the process is called the decomposition.
नाउ ये जो डिकम्पोजिशन टर्म है यहाँ पे ऑर्गेनिक कन्वर्टेड टू इनऑर्गेनिक, और ये इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है? Here it is including the CO2, water and the nutrients. So this is very important कि तुम साइड में कुछ लिखते रहो, इससे कनेक्टिविटी बनी रहती है चैप्टर की. So dead plants remain such as the leaves, bark, flower and the dead remains of the animal including the fecal matter constitute the detritus. Now यहाँ पे जो detritus जो टर्म इसने यूज करा है, this is the raw material for the decomposition on which the detrivore act. जैसे कि अर्थवर्म ये सब एक्ट करेंगे और इसमें से क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेंगे. और वो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? किसके? डेट्राइटस के. सो दीज आर द डेड पार्ट ऑफ द लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स, इवन द बॉडी वेस्ट दैट इज द फीकल मैटर. फॉर एग्जाम्पल जो खाद यूज होता है जिसमें हम लोग गोबर का यूज करते हैं, एज वेल एज फॉर द फर्टिलिटी, गुड फर्टिलिटी. सो द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर द फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन and the mineralization. These are the important steps which helps in the decomposition. तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए. That is the fragmentation, second is the leaching, then the catabolism, humification and the mineralization. तो तुमने detritus देखा. First let's see the structure of this decomposition ताकि आसान रहेगा. तो पहला जो step है that is the fragmentation. The second step is the leaching. The third step is the catabolism. The fourth step is the humification. And the fifth step is the mineralization. So these are the steps of the decomposition. So the in fragmentation यहाँ पे act करता है earthworm. तो इसको पहले हम देख लेते हैं कैसे. Detrivore, that is the earthworm, break down the detritus into the smaller particles and this process is called the fragmentation. तो यहाँ पे earthworm act करता है and this is the detrivore. और ये क्या करता है? स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है. ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स यानी कि फ्रेगमेंटेशन जो टर्म बता रहा है खुद ही फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करता है. नाउ बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग water soluble inorganic nutrients go down into the soil. Now keep in mind यहाँ पे होता है water soluble inorganic nutrient, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूज हो जा सकता है ना कि वाटर सॉल्युबल था या वाटर इनसॉल्युबल था. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट देयर. और यहाँ पे इनऑर्गेनिक है. अब ऐसा नहीं कि वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक में कंफ्यूज हो जाओ या वाटर सॉल्युबल water insoluble organic में confuse जाओ. So keep in mind. Now and this get precipitated as the in unavailable salt. ये हो जाता है precipitated as unavailable salts because यहाँ पे इसने लिख रखा है. Now the bacterial and the fungal enzymes degrade the detritus into the simpler inorganic substances and that is called the catabolism. तो यू कैन से दैट कि यहाँ पे कैटाबॉलिज्म में कौन एक्ट कर रहा है? यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया एंड द फंगी. ठीक है, और यहाँ पे बैक्टीरिया एंड फंगी, फंगल एंजाइम्स कह लो, एंजाइम्स, दे आर एक्टिंग ऑन दिस एंड कन्वर्टिंग देम इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लिख लो यहाँ पे. नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, इसको देखो कैटाबॉलिज्म. तो ऑफकोर्स यहाँ पे टर्म है, ये क्या कर रहा होगा? डिग्रेड कर रहा है detritus. Now let's see the next para, that is it is important to note that all the above step in the decomposition operate simultaneously and this is important. ये जितने भी steps हैं जो 5 steps हम देख रहे हैं, these are operating simultaneously on the detritus. और detritus कौन थे? वो ऑर्गेनिक मैटर थे जैसे कि डेड प्लांट की रीमेन पार्ट्स या फीकल मैटर या फिर डेड एनिमल्स. Now this humification and mineralization occur during the decomposition in the soil. तो
ये जो ह्यूमिफिकेशन है और ये जो मिनरलाइजेशन है, दीज आर अकरिंग इन द सोइल। यहाँ पे लिख लो सोइल। अब यहाँ पे पहले देखते हैं ह्यूमिफिकेशन। नाउ दिस ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमस। ठीक है, और ह्यूमस को हम देख लेते हैं ह्यूमस होता क्या है। ये एक अमॉर्फस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। सो लेट्स हाईलाइट दिस। तो ये रहा हमारा ह्यूमस, दैट इज द accumulation ऑफ डार्क colored amorphous substance called humus, and it is highly resistant to the microbial action, and it undergoes decomposition in an extreme slow rate. Okay, and this is colloidal in nature, also serve as the reservoir of nutrients, and the humus further degraded by some microbes and release the inorganic nutrients, and this is occurring because of the process called the humification. So this is वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस की टोटल इंपॉर्टेंस को बता रखा है। और जब ह्यूमस से हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को निकालते हैं बाय द डिग्रेडिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस को करने के बाद विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रोब्स, तो उसको हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो दिस यहाँ पे बस लिख लो अमॉर्फस। नाउ दिस मिनरलाइजेशन, दिस इज हेल्पिंग इन डिग्रेडिंग ह्यूमस। ओके, तो तुमने ये सारे पॉइंट्स देख लिए। फर्स्ट हमने फ्रेगमेंटेशन देखा, देन द लीचिंग, देन द कैटाबॉलिज्म, देन द ह्यूमिफिकेशन, एंड एट द लास्ट मिनरलाइजेशन। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, ये सब कुछ साइमल्टेनियसली ऑपरेट हो रहा था, जो कि हमने यहाँ पे हाईलाइट भी कर लिया। सॉरी, ठीक है, साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्रेटस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, that is the diagrammatic representation of the decomposition cycle in the terrestrial ecosystem. So now let's check this. Suppose this is a tree grows in the soil. यहाँ पे उसका कोई body part गिर गया, that is the leaf. Okay, so a green leaf falls to the ground. Now ये जो leaf है, these are eaten by insect and other animals. Nutrient and energy enter the food wave, जो कि energy transfer देख रहा था हमें unidirectional. नाउ सपोज करो कि इसको किसी ने खा लिया और ये एनर्जी यहाँ से सपोज करो बाहर गया, ठीक है, वो ट्रांसफर हो गया फूड वेब। नाउ सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू द सोइल बाय द केमिकल एक्शन, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लीचिंग होने लग रहा। तो लीचिंग में क्या था, वो जो इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स थे वो चले जा रहे थे, प्रेसिपिटेट हो जा रहे थे एज द अनअवेलेबल सॉल्ट, और फिर इसी जो लीफ था इसका कुछ हिस्सा लीव्स पार्शियली कंज्यूम्ड बाय द डिकम्पोजर, बिकॉज ये साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जब डिकम्पोजिशन हो रहे थे ए लीव्स के, सो दे बिगेन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर, बिकॉज ऑफ whom? ये हुआ बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन बाय द डिकम्पोजर, और वो थे फंगी और बैक्टीरिया, जिन्होंने इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फंगी एंड द बैक्टीरिया। नाउ दिस थिंग अगेन गोज फर्दर डिकम्पोजिशन बाय द अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सोइल माइट्स, फंगी, और एट द लास्ट इनका बस एक ही पोजीशन है, दैट इज द ऑर्गेनिक रिच सॉइल। ठीक है, और फिर यहाँ से ऑर्गेनिक रिच सॉइल से ये अगेन प्लांट के पास वापस जाते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे टोटल एक फ्लो है, एक साइक्लिक फ्लो है जो कि ऑपरेट हो रहा है, जहाँ पे टोटल डिकम्पोजिशन हो रहे हैं, और फिर वो एनर्जी जो न्यूट्रिएंट्स जो मिल रहे हैं या जो एनर्जी है वो या तो फूड वेब में जा रहे हैं या फिर वो वापस सप्लाई कर दिए जा रहे हैं बैक टू द प्लांट्स फॉर द प्राइमरी प्रोडक्शन। सो नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैरा। यहाँ पे डिकम्पोजिशन के बारे में, दिस इज लार्जली ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कैसे अफेक्ट होता है। सो द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा रेट के बारे में। नाउ इन अ पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट्स इज स्लोअर। तो अब स्लो किस कंडीशन में होंगे? So these are slower if the detritus is rich in lignin and the chitin, और quick कब होंगे? If the detritus is rich in the nitrogen and the water soluble substances like the sugar. So यहाँ पे लिख लो slow, तो slow होगा lignin and the chitin, and the faster in the presence of soluble sugar
and rich in nitrogen, स्लो रेट एंड द फास्टर रेट। तो अब हम देखते हैं टेम्परेचर एंड सोयल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब हमने ये तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स को देखना है और इसमें हमें ये पता चलता है कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर, दैट इज द टेम्परेचर एंड द सोयल में मॉइस्चर कितना है, यानी कि उसका वाटर कंटेंट कितना है, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट द डिकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सोयल माइक्रोब्स। वो माइक्रोब्स को कैसे सपोर्ट करते हैं, बिकॉज द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स मेनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। So you can say that की temperature and the soil moisture, this is the most important climatic factor। अब most को तुम highlight कर लो जिससे तुम्हें ये याद रहे। अब यहाँ पे देखो, warm and the moist environment favors the decomposition whereas the low temperature and anaerobiosis यानी कि no oxygen कह लो, no O2 inhibit the decomposition resulting in the build-up of organic material। तो डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी या वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब बॉडी को डिकम्पोज होने में लाइक इन आर्टिक्स और इन क्लाइमेटिक एरियाज जहाँ पे बर्फ ज़्यादा होते हैं, दैट टेक्स 100 of years या कह सकते हो 1000 of years टू डिकम्पोज अ बॉडी, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल और बहुत ही स्मॉल लेवल पे वहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है। एंड यू गेट द डिफरेंट न्यूज़, जैसे कि कोई बॉडी डिस्कवर्ड होती है आफ्टर 80 years, आफ्टर 90 years, जो बर्फ में दबी होती है। सो दिस इज द रीजन, बिकॉज द डिकम्पोजिशन इज नॉट टेकिंग प्लेस, बिकॉज अगर वो बर्फ में दबी है सो देर इज द वेरी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है। सो दिस डिकम्पोजर्स आर अनेबल टू एक्ट ऑन द बॉडी एंड दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क नाइसली। वर्क तो कर ही रहे हैं बट वो काफ़ी स्मॉल रेट पे वर्क कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 12.4 एनर्जी फ्लो। फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, जो जितने भी बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं सबके लिए सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है दैट इज द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, यहाँ पे सन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, बाकी सभी के लिए है। नाउ वन ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% इज कॉल्ड photosynthetically active radiation। So we can say that the PAR, that is the photosynthetically active radiation, is less than 50% of the incident solar radiation। So we know that the plant and photosynthetic bacteria, जो photosynthetic bacteria होते हैं उनमें हम autotroph भी बोलते हैं। Plant and the photosynthetic bacteria fix the sun radiation energy to make the food from the simple inorganic material। So we can say that plant, यहाँ पे हुआ sun, ठीक है, तो इसके रेडिएंट एनर्जी को इसने फिक्स करा, देन इसने सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करा फूड में। सो आई एम मेकिंग दिस एज अ चार्ट, बिकॉज यहाँ पे जो सिंपल इनऑर्गेनिक है ना, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रहने के लिए इसलिए मैंने ये ड्रॉ करा, बिकॉज यू माइट गेट कन्फ्यूज बिटवीन द ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स, ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं। सो यहाँ पे टर्म है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिससे कि फूड प्रिपेयर हो रहा है। ओके, सो प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द PAR एंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे इसने जो PAR था वो रीजन कितना था, लेस देन 50% था ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। अब इसमें से भी प्लांट कितना यूज कर रहा है, मतलब कैप्चर कितना कर रहा है, अराउंड 2 to 10%। सो कीप इन माइंड। So it is very important to know how the solar energy captured by plant flow through the different organisms of an ecosystem। All organisms now, अब यहाँ पे जो जितने भी organisms वो किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे इसने all टर्म का यूज़ करा है। डिपेंड ऑन देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सपोज करो कि वी आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट, मतलब इन सम केसेस जो कि नॉन वेजिटेरियंस हैं, उन केसेस में हम कह सकते हैं। सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, जो हमने देखा है इन द प्रीवियस टॉपिक, फ्रॉम द सन एंड टू प्रोड्यूसर एंड देन टू द कंज्यूमर। सो दिस इज कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ बैठ रहा है, सो वी कैन से दैट कि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ बैठ रहा है, ठीक है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होगा ही।
ओके, सो इसका आंसर है यस, इट इज कीपिंग बट ऑन सेकेंड लॉ ऑल्सो। ठीक है, ये इससे भी वंचित नहीं है, इसमें भी ये डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं। तो अब इसे देखते हैं। चलो तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट को। फर्दर द इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, they need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require to counteract the universal tendency towards the increasing disorderness। ठीक है, डिसऑर्डर लाइंस। तो यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे एंट्रोपी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहती है यूनिवर्स की, तो उसको भी काउंटरैक्ट करने के लिए ये एनर्जी का यूज करता है। सो वी कैन से दैट दिस इज फॉलोइंग द फर्स्ट प्लस द सेकेंड लॉ बोथ। ठीक है, so the green plant in the ecosystem are called the producers। this is quite simple, तुम्हें पता है, because green plant with chlorophyll and chlorophyll, with the help of chlorophyll they do the photosynthesis। now in a terrestrial ecosystem major producers are, now what do you mean by the terrestrial ecosystem? terrestrial ecosystem तुम्हें पता है जो कि सोयल से या लैंड से कनेक्टेड है। यहाँ पे जो मेजर प्रोड्यूसर है ये है हार्बिशियस एंड द वुडी प्लांट्स। नाउ हार्बिशियस प्लांट तुम्हें पता है ना, जो हर्ब्स होते हैं, और जो वुडी प्लांट है यू नो दैट क्या है वुडी प्लांट। नाउ what about the producers in the aquatic ecosystem? यहाँ पे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन एंड एल्गी एंड द हायर प्लांट्स। ओके, यहाँ पे कह सकते हैं aquatic ecosystem has the various species like phytoplanktons, algae and the higher plant। so यहाँ से वो क्वेश्चन है जो क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे देखो इसने कितनी आसानी से यहाँ पे इसने हायर प्लांट यहाँ पे यूज करा और यहाँ पे इसने वुडी प्लांट यूज करा। तो we don't have to get confused by the single word also। तो keep in mind जो ये वुडी प्लांट है ये किस में दे रखा था, इसने टेरेस्ट्रियल में दे रखा है, और जो हायर प्लांट्स है ये दे रखा एक्वाटिक में। सोचो कि अगर क्वेश्चन आ जाता हायर प्लांट इज क्या बोलते हैं सोर्स किसके लिए है, तो तुम क्या बोलते? ऑफकोर्स तुम प्रोड्यूसर के साथ जाते, सॉरी टेरेस्ट्रियल के साथ जाते, बट यहाँ पे इसने हायर प्लांट्स को बोला एक्वाटिक और वुडी प्लांट को बोला इसने टेरेस्ट्रियल। सो द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम प्रोड्यूसर, टेरेस्ट्रियल में ये मेजर प्रोड्यूसर है कौन से, हार्बिशियस प्लांट्स एंड द वुडी प्लांट, एंड जो कि तुम्हारे फाइटोप्लैंक्टन्स और एल्गी एंड द हायर प्लांट्स वर द प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द एक्वाटिक इकोसिस्टम। सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। Now let's move to the next topic, sorry next para। you have read about the food chains and the waves that exist in nature starting from the plant or producers। food chains, rather the waves, are formed such that the animals feed on plants and the other animals and in turn food for the another। for example कोई प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट को खाया किसी गोट ने और इस गोट को खाया सपोज करो किसी लॉयन ने बोल दो या ह्यूमन ने। तो यहाँ पे देख रहे हो एक फूड चेन एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सो द चेन और द वेव इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे किस रीजन से ये फॉर्मेशन होती है इन चीजों की, सो देखते हैं। अब चेन हो या वेव हो, दिस इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू द ऑर्गेनिजम्स रिमेन्स इन इट फॉरएवर। फॉर एग्जांपल अभी तुम अलाइव हो, ठीक है, एक टाइम था तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अलाइव थे, उनके पास वो एनर्जी थी, वो सोल थी। अभी वो टाइम है कि वो जा चुके हैं और उनकी एनर्जी जो है ट्रांसफर हो चुकी है इन्वायरमेंट में। अब उनको क्रिमेशन किया या फिर जो भी जिस भी प्रोसेस किया, एट द एंड क्या रिजल्ट मिला, एट द एंड रिजल्ट मिला कि वही फूड चेन साइकिलिंग सब कुछ सप्लाई होते गया, एनर्जी फ्लो हुआ, मिनरल रिसाइकल हुआ, फिर अगेन द लाइफ का साइकिल चलते रहा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज होता है, कोई भी अनंत नहीं है, किसी की भी एनर्जी हमेशा नहीं रह सकती, जो है उसे जाना होगा, ठीक है, और जो नहीं है वो एक दिन आएगा। सो the energy trapped by the producer hence is either passed on to the consumer or the organism dies। for example यहाँ पे कुछ प्लांट था तो इसको या तो प्लांट को गुड ने खाया तो एनर्जी इसका ट्रांसफर हो गया, या वो जो प्लांट था वो डाई कर गया, मर गया, उसको डिकम्पोजर्स ने डिकम्पोज कर दिया। सो इन द बोथ कंडीशंस रिजल्ट तो एक ही था कि उसका एनर्जी जो था, उसका जो मिनरल था वो ट्रांसफर हो गया, रिसाइकल हो गया। सो डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्रेटस फूड चेन या फूड वेव। अब तुम इसलिए इसे कह सकते हो बिकॉज डेथ से ऑर्गेनिक मैटर जो बचता है ना, रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स का, वो डेट्रीवोर के हाथ में चला जाता है और वहां पे वो अपना फर्दर प्रोसेस चालू कर देते हैं। नाउ यहाँ पे अगेन ऑल टर्म्स यूज्ड है, यहाँ पे जहाँ पे भी ये ऑल ये सब वर्ड यूज होते हैं, सो कीप इन माइंड ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। अब वो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है फॉर देयर फूड नीड्स।
सो हेंस दे आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स. कौन कंज्यूमर बोले जाते हैं? ऑल एनिमल्स एंड ऑल्सो द हेट्रोट्रॉप्स. बिकॉज हेट्रो क्यों? बिकॉज वो खुद से खाना नहीं बना रहे ना, किसी पे डिपेंडेंट है. सो इफ दे फीड ऑन प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स, दे आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर. सो यू कैन से दैट यहाँ पे गोट क्या था? यहाँ पे गोट जो था, हमने जो एग्जांपल देखा, यहाँ पे ये गोट था प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक था, और जो प्लांट था ये था प्रोड्यूसर. नाउ if the animals eat other animal which in turn eat the plant or their producers, they are called the secondary consumer. अब सपोज करो इस गोट को लाइन ने खा लिया, तो ये कौन सा है? ये है सेकेंडरी कंज्यूमर, या तुम कह सकते हो ये है टर्शरी लेवल, जो भी हम नेक्स्ट पेज में देखने वाले हैं. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. यहाँ पे ऑब्वियस बात है दैट द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी द हर्बीवोर, ऑफ कोर्स, जैसे कि गोट एग्जांपल था. सम कॉमन हार्बीवोर्स आर, अब वो हार्बीवोर के एग्जांपल कुछ दे रखे हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी है, दैट इज इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं. मैमल्स आर ऑल्सो हार्बीवोर एंड दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर ऑल्सो, बिकॉज जो वेजिटेरियन है, जो वेज खाना खाते हैं, दे माइट बी कॉल्ड द हार्बीवोर्स, ठीक है. वाइल जो नॉन वेज फूड पे डिपेंड कर रहे हैं, दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये टर्शरी लेवल में आते हैं. सो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मलस्का इन एक्वाटिक इकोसिस्टम. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे भी जब पता चला था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था टर्म, बिकॉज हम पूरी एनिमल किंगडम पढ़ते हैं जहाँ पे हम मोलस्का को देखते हैं, ठीक है, मोलस्क्स. सो दिस इज द हार्बीवोर. ओके, ये जो मोलस्क्स है, दिस इज द हार्बीवोर ऑफ एक्वाटिक ecosystem. So you must highlight this because ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है. एंड जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, यू कैन ईजिली से कि इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं. नाउ द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दिस हार्बीवोर आर कार्निवोर्स. जैसे कि लॉयन यहाँ पे कार्निवोर था, या प्राइमरी कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर. सो वी कैन से दैट यहाँ पे एक चीज़ हमें पता चलती है, जो टर्शरी लेवल है, ठीक है, यानी कि थर्ड लेवल है, वो है सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे कि लाइन एग्जांपल था इसका. और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो क्या है? वो है प्राइमरी कार्निवोर, बिकॉज ये है फ्लैश ईटिंग. तो ये फर्स्ट लेवल था ना फ्लैश ईटिंग का, जो हमने लाइन में देखा. तो यू कैन कीप दिस इन माइंड, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है. नाउ those animals that depend upon the primary carnivore for food are labeled as the secondary carnivore. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है जीएफसी का, यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन का. सो लेट्स सी दिस. जीएफसी में फर्स्ट लेवल है दैट इज अ ग्रास, दैट आर द प्रोड्यूसर्स. देन ग्रास को खाया गोट ने, वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, और गोट को खा गया इंसान ने, वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है. जो सेकेंडरी कंज्यूमर था उसको हमने बोला क्या? ये बोला कि वो टर्शरी लेवल है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो प्राइमरी कार्निवोर है. बट तब क्या होता, जब इस मैन को, किसी इंसान को एक लायन खा जाता, तो जब इसे लायन खा जाता तो ये होता, आप लोग, मैं इस बता रहा हूँ, जब इसे लायन खा जाता तो ये लाइन कौन सा लेवल होता? ये होता क्वार्टरनी लेवल, फिर ये होता टर्शरी कंज्यूमर, या इसे हम बोल देते सेकेंडरी कार्निवोर. ओके, तो हमने काफ़ी अच्छे से इस पेज को समझ लिया, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेज. इसको ब्रेक डाउन करके समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जस्ट रीडिंग विल नॉट हेल्प यू दैट मच, बिकॉज अगर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगी तो तुम लॉन्ग टर्म पे से याद रख सकोगे. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पेज, दैट इज द डेट्राइटस फूड चेन, डीएफसी. ये बिगन कब होता है? बिगेन्स विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर. इट इज मेड अप ऑफ द डिकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉपिक, मेनली फंगी एंड बैक्टीरिया. तो तुम्हें यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पता चला? तुम्हें यहाँ पे पता चला डीएफसी के बारे में, डेट्राइटस फूड चेन्स. और तुम्हें फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या पता चला? ये बिगिन कब होता है? ये बिगिन्स होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, या कह सकते हो डेट्राइटस से, ठीक है. एंड ये डिकम्पोजर्स से होते हैं, तो इसका काम है डिकम्पोज करना. सो दे मीट द एनर्जी and the nutrient requirement by the degrading dead organic matter or the detritus, and these is known as the saprophytes,
ठीक है, तो ये सेट्रोट्रॉप्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो सेप्रोट्रॉप्स, जिसमें तुम बोल सकते हो फंगी एंड बैक्टीरियास। नाउ सेप्रो मीन्स का, सेप्रो जो होता है ना टर्म, दैट मीन्स टू डिकम्पोज। नाउ डिकम्पोजर सीक्रेट अ डाइजेस्टिव एंजाइम that break down the dead and the waste material into the simple inorganic material which is subsequently absorbed by them. Now you can say that कि ये जो सेप्रोट्रॉप्स थे, यानी कि जो डेट्रीवोर्स थे जो उसको डिकम्पोज कर रहे थे, दे रिलीज द इंजाइम्स। ठीक है, तो यू कैन से दैट कि ये करते हैं, रिलीज करते हैं एक डाइजेस्टिव इंजाइम को। और इससे क्या फायदा होता है, जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम डिफरेंट कलर, जो डेट्राइटस थे वो कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड टू, अब ये जिस चीज में कन्वर्ट होता है दैट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, वो है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। नाउ यू मस्ट रिमेंबर दैट जो तुम्हारा डेट्राइटस था वो इटसेल्फ ऑर्गेनिक मैटर था, तो उसको तो सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होना था ना, जो कि CO2 हो सकता है, नाइट्रोजन कॉन्टेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। ओके, सो कीप इन माइंड। नाउ इन एक्वाटिक इकोसिस्टम GFC जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो रोल प्ले करता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। GFC इज द मेजर कॉन्डक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो एज अगेंस्ट इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन सा है उसको देख लो। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द DFC, ठीक है, देन द GFC। देखो होता तो दोनों ही है दोनों में, बट जो मेजर कॉन्डक्ट्स है इक्वाटिक में है वो ग्रेजिंग फूड चेन्स, वाइल इन टेरेस्ट्रियल कौन से अपने GFC सॉरी DFC है। सो यहाँ पे लिख लो एक्वाटिक ग्रेजिंग फूड चेन एंड टेरेस्ट्रियल यहाँ पे अपने detritus food chain. So detritus food chain may be connected to the grazing food chain at some level, because suppose करो कोई organisms graze कर रहा हो, फिर मर जाता हो, फिर उसका डिकम्पोजिशन चालू हो जाता हो। सो वी कैन से दैट कि ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। कौन से, ये जो अपने डेट्राइटस है कनेक्टेड होते हैं ग्रेजिंग फूड चेन से किसी लेवल पे। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ DFC आर प्रे टू द GFC एनिमल्स, and in animals ecosystem some animals like cockroach, crow etc are omnivore, यानी कि ये दोनों खा सकते हैं। ओके, सो कीप इन माइंड यहाँ पे इसने ओमनीवोर का एग्जांपल दे रखा है इनडायरेक्टली, एंड तुम्हें पता रहना चाहिए ये जो कॉकरोच होता है ये होता है ओमनी, बिकॉज क्रो का तो तुमने देखा होगा काफ़ी क्लोजली, कुछ भी रोटी भी खा लेते हैं और फ्लैश भी खा लेते हैं, बट कॉकरोच का दिमाग में रख लो, ये ओमनीवोर होता है, बिकॉज कॉकरोच तो दूर रहते हैं इंसान से, मतलब रहते हैं घर ही में, बट वो सामने घूमते थोड़ी हैं, अकेले में आते निकलते हैं बाहर। दिस एनिमल्स इंटरकनेक्टेड द फूड चेन्स मेक इट द फूड वेव। अब सपोज करो कोई 4 फूड चेन था, आपस में सारे कनेक्टेड हो गए, फूड वेव क्रिएट हो गया, बट हमें इस चैप्टर में स्कोप नहीं है इसको पढ़ने का, इसलिए हम फूड वेव नहीं देखते हैं, ओनली हम इस चैप्टर में फूड चेन पढ़ते हैं। नाउ ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी ऑर्गेनिजम्स को अगर ऑक्यूपाई करना होगा किसी प्लेस को जो कि कुछ नेचुरल सराउंडिंग है या कोई कम्युनिटी है, तो उसको अपनी जगह किस हिसाब से मिलेगी, उसकी फीडिंग रिलेशनशिप से विद द अदर ऑर्गेनिजम्स। बट अब जो ह्यूमन सोसाइटी में हो चुका है, अब तुम्हें पता है कि वो अब जॉब पे डिपेंड करता है। सिमिलरली जो इनका जॉब था, जो नेचर का जॉब है, वो मेन किससे रिलेटेड है, इंसानों की तरफ पैसे से नहीं, बट फीडिंग रिलेशनशिप से अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ। So based on the source of their nutrition or food, organisms occupy a specific place in the food chain, और उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। अब सपोज करो कि कोई प्लांट खाता होगा तो उसको हम टर्शरी तो बोलेंगे नहीं, कार्निवोर तो नहीं बोल सकते ना, उसका जो फीडिंग रिलेशनशिप है उसको हम देखते हुए, एक प्लांट ईटर इंसेक्ट है उसको तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, या उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे ना, जो हमने देखा था। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसेक्ट है और ये सपोज करो ग्रास है, ग्रास को खा लिया इंसेक्ट ने, तो अब तुम इस इंसेक्ट को टर्शरी कार्निवोर तो नहीं बोल सकते, बिकॉज इसका जो रिलेशन है फीडिंग रिलेशनशिप के बेस्ड पे इसको क्लासीफाई किया गया, उसको एक कम्युनिटी में डाली गई है या उसको एक नेचुरल सराउंडिंग में दिया गया।
तो तुम कह सकते हो कि हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है, उनके फीडिंग रिलेशनशिप पे ध्यान देना है, और बिकॉज ऑफ देयर फीडिंग रिलेशनशिप उसको हम एक प्रॉपर क्लास देते हैं, और जिसको हम फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, बिकॉज वो क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ है, फर्स्ट लेवल हेट्रोट्रॉफ है, वो ग्रास खा रहा है। ओके, सो द प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वो होते हैं हार्बीवोर जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, टू द सेकेंड, एंड द कार्निवोर जो होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टू द थर्ड। तो अब देख लो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसने ट्रॉपिक लेवल्स को दिखा रखा है। तो हमने पीछे भी अपने खुद से जब रिवाइज हम कर रहे थे तो हम लोगों ने देख लिया था कि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है दैट इज द प्लांट। ओके, ये फोटोसिंथेटिक करते हैं, सन को अपना एनर्जी मानते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, फिर उसको खा जाता है कौन, प्राइमरी कंज्यूमर। फर्स्ट वन है ना जो कंज्यूम कर रहा है, दैट इज वाई प्राइमरी कंज्यूमर। सो दिस इज द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, और इसके एग्जाम्पल होते हैं जू प्लैंकटन, ग्रास होपर्स, काऊ। ओके, बट जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाए, जो जू प्लैंकटन को खा जाए, जो ग्रास होपर को खा जाए, वो होते हैं बर्ड्स, फिशेस एंड द वुल्फ, एंड दीज आर द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है कार्निवोर, तो तुम इसे कह सकते हो कि ये प्राइमरी कार्निवोर भी है। फिर जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं, यानी कि वो थर्ड लेवल पे हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं किसी को, फर्स्ट लेवल पे तो ये अपना प्राइमरी वाले थे, तो ये टर्शरी पे थर्ड लेवल पे हो गए। सो दीज आर द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल एंड द टॉप कार्निवोर। तब वो इंसान भी है उसी लाइन में और लायन भी है। इंसान अपनी ताकत की वजह से नहीं बट अपनी दिमाग की वजह से इस पोजीशन पे जाके ऑक्यूपाई कर चुका है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। एंड अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है जिसको नोट डाउन करने की खुद एनसीईआरटी बोल रही है। That the amount of energy decreases at the successive trophic levels when many, सपोज करो कि कोई ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है, यहाँ पे तुम अंडरलाइन कर लो, कोई ऑर्गेनिज्म सपोज करो मरा, तो वो कन्वर्ट क्या में होता है, एक डेट्राइटस में या एक डेड बायोमास हो गया वो, और वो सर्व करता है एज अ एनर्जी सोर्स फॉर द डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया थे, फंगी थे, जो भी थे अपने, तो हम कह सकते हैं कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसको डिपेंड करना है ना, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो भी हो एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड करते हैं किस पे, अपने लोअर ट्रॉपिक लेवल पे फॉर देयर एनर्जी डिमांड्स। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे वो एजर्सन रीजन काफी इजिली क्रिएट कर सकता है। एजर्सन में वो डालेगा क्या, ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड अपॉन दोज ऑफ द लोअर ट्रॉपिक लेवल, या एजर्सन डालेगा, और रीजन में डालेगा फॉर देयर एनर्जी डिमांड। सो इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। Each tropic level has a certain mass of living material at a particular time, and that is called the standing crop. Now this is the important line because this was in the PYQ also. अब इसको highlight करो. Let me use another highlighter. That each tropic level has a certain mass of living material at a particular time. Okay, and that is called the standing crop. For example, अगर कोई secondary tertiary level है, ठीक है, ठीक है, तो वहां पे भी कुछ उसका बायोमास तो होगा ना, कोई ऑर्गेनिजम्स होंगे, कुछ होगा जिसका कुछ मास होगा जिसको तुम मेजर कर सकते हो। ओके, सो द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दैट इज कॉल्ड द बायोमास, या द नंबर इन अ यूनिट एरिया। तो तुम इस चीज को हाईलाइट कर लो बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन। That is the biomass of a species is expressed in terms of fresh or dry weight. तो इसको भी हाईलाइट ही कर लो, काफी अच्छा है क्वेश्चन हो सकता है इससे। बायोमास ऑफ ए स्पीसीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्रेश वेट या कि ड्राई वेट यूज करते हैं। सो द मेजरमेंट ऑफ द बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। ओके, इसका वाटर कंटेंट हम निकाल लेते हैं तब ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बिकॉज यहाँ पे हम टोटल ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिलती है। ओके, so the number of tropc level in the grazing food chain is restricted to the transfer of energy flow, और वो फ्लो करता है 10% रूल को फॉलो। सो 10% लॉ, जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स है तो अगर उसको अपर लेवल पे उसको एनर्जी अपना देना होगा, ट्रांसफर करना होगा, सो ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द ईच ट्रॉपिक लेवल एंड द लोअर ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल। तो तुम कह सकते हो कि 90% रह जाता है लोअर के पास और अपर वाले के पास 10% जाता है। So in nature, it is possible to have so many levels: producer, herbivore, primary carnivore, secondary carnivore, grazing food chain in the grazing food chain. ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें कुछ डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे एनर्जी फ्लो हमें दिखने वाला है थ्रू द
ट्रॉपिक लेवल्स. नाउ लेट्स सी दिस. सपोज करो कि ये सन था जो कि अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, जिसका कुछ हीट किया और कुछ जो इसका एनर्जी था वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट के पास गया. फिर जो ये प्लांट था इसके भी कुछ रेस्पिरेटरी लॉसेस हुए, कुछ हीट में लॉस हुआ और बाकी ट्रांसफर हुआ कि इसके पास सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल के पास. तो यू कैन से दैट कि अगर इस प्लांट के पास 100 जूल एनर्जी रहती तो हीट में 90% जाता उसका और 10% यानी कि 10 जूल उसके नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को मिलता. फिर इस बर्ड को उसका 1% मिलता, सॉरी 10% मिलता कि वो 1 जूल होता. फिर जो इसका नेक्स्ट बर्ड था जो हायर लेवल पे था, जो कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे था, जो कि टर्शरी कंज्यूमर है, टॉप कार्निवोर है, यानी कि ईगल जैसा या फाल्कन जैसा कुछ दिख रहा है. सपोज करो कि ईगल है, ओके. तो इसके पास कितना एनर्जी आता, इस 1 का 10% आता है इसके पास, बाकी जो 90 है यानी कि इसके पास 0.1 जूल आता और हीट लॉस कितना हो जाता, 0.9 जूल का हीट लॉस होता. यहाँ पे 9 जूल का हीट लॉस होता. एंड अगेन यहाँ पे अगेन सपोज करो कि इस 10 जूल वाले से अगर इसके पास आ रहा है तो इसके पास कितना 1 जूल आएगा. अगर इस प्लांट से आ रहा है इसके पास तो इसके पास 10 जूल आएगा. तो बस तुम्हें एक ही चीज फॉलो करनी है, दैट इज द 10% लॉ. ओके. Now the next topic, that is 12.5 and it's called ecological pyramids. So the topic is saying you must be familiar with the shape of pyramid. Okay, the shape of pyramid is just something like this. Okay, ये कुछ ऐसा दिखता है. ओके, इजिप्ट में पाए जाते हैं. तो अब देखो कि इसने कैसे रिलेट करा है हमारे चैप्टर से. ओके, द बेस ऑफ द पिरामिड इज ब्रॉड. तो ये सपोज करो बेस है, सो दिस इज ब्रॉड, थोड़ा सा चौड़ा है, थोड़ा सा मेरे डायग्राम में चौड़ा है बट एक्चुअली इट इज वे मच ब्रॉडर. और जो उसका नॉच होता है एपेक्स साइड होता है नैरोवर टुवर्ड्स द एपेक्स. तो यू कैन से दिस कि ये अपेक्स है तो दिस इज नैरो. वन गेट्स अ सिमिलर शेप wherever you express the food or energy relationship between the organisms, of course because 10% rule है. ओके, सो द रिलेशनशिप इज एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ नंबर. तो देखो इसको हाईलाइट कर लो बिकॉज जो रिलेशनशिप किस किस टर्म्स में एक्सपेक्ट हो सकते हैं और हमें पता चलता है. सो द रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी. एनर्जी का तो ऑलवेज ही अपराइट होगा. अब देखो हम कैसे कैसे देखते हैं इसको. ओके, so the base of each pyramid represent the producers or the first trophic level while the apex represent the tertiary or the top level consumer. फॉर एग्जाम्पल अगर ये बेस है प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि ये प्लांट रहा होगा, अगर ये हम जीएफसी की बारे में बात कर रहे हो तो. सो द 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स दैट आर यूजुअली स्टडीड एंड द फर्स्ट वन इज दैट इज द पिरामिड ऑफ नंबर. ओके, एंड द सेकेंड वन इज द पिरामिड ऑफ बायोमास एंड द लेटर वन इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो ये 3 टाइप्स होते हैं. So let's see this. The first one is the pyramid of number. Okay, तो तुम देख सकते हो ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं. यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है जो अपने प्लांट है उनकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन द टर्शरी कंज्यूमर. और ये काफ़ी लेस है नंबर्स में बिकॉज हमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमें ज़्यादा चाहिए भी बिकॉज ऑफकोर्स एट द लास्ट अगर 10% रूल को फॉलो करना है, ठीक है, 10% रूल को फॉलो करना है तो ऊपर जाते जाते ऐसे भी कमी एनर्जी मिलने का है. तो ज़्यादा नीचे रहेंगे तब तो वो ज़्यादा खाएगा और अपनी भूख मिटाएगा. ओके, सो द पिरामिड ऑफ नंबर इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम ओनली टॉप 3 आर द कार्निवोर सपोर्टेड बाय द इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स. देख रहे हो यहाँ पे 6 मिलियन ऑलमोस्ट प्लांट्स हैं, यानी कि 60 लाख लगभग प्लांट है, 58 लाख 58 लैक्स. So this is the pyramid of biomass which shows the sharp decrease in the biomass at the higher trophic level. So ये उसका वेट है, ड्राई वेट में टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा है. सोचो कि ये कुछ प्लांट रहे होंगे तो प्लांट का जो बायोमास था वो 809 kg डिवाइडेड बाई m स्क्वायर है. ठीक है, और इसको हम ड्राई वेट की टर्म्स में यूज कर रहे हैं. तो तुम देख सकते हो कि इसकी ड्राई वेट काफ़ी ज़्यादा है. तो यू माइट बी थिंकिंग इसको हम पहली बार टेरेस्ट्रियल घोषित कर ही देते हैं बिकॉज ये खेल उल्ट हो जाता है कब, जब हम एक्वाटिक की बातें करते हैं. तो सो दिस इज हायर, तभी तो ये ब्रॉडर है. देन सपोज करो कि ये प्राइमरी कंज्यूमर के पास गया, सपोज करो कि ये इंसेक्ट है और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर के पास गया, सपोज करो कि ये स्पैरो है. फिर ये टर्शरी के पास गया, सपोज करो ये ईगल है. एज सिंपल एज दैट. तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे भी शार्प डिक्रीज है इन द बायोमास. अब मत कह देना शार्प इंक्रीज है बायोमास में, नहीं.
तुम ये समझो, जो नीचे ब्रॉड है ना वो ऊपर नैरो हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। नाउ ये इन्वर्टेड पिरामिड होता है बायोमास का, कहाँ पे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स के केसेस में, यानी कि एक्वाटिक कंडीशंस में। बिकॉज जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं वो भले ही ज़्यादा होते हो नंबर में, बट सपोज करो कि एक फाइटोप्लैंक्टॉन ये साइज का हुआ, ये साइज का हुआ, और जो उसको कंज्यूम करने वाले फिशेस हैं वो उसके सपोज करो कि 10,000 टाइम्स के हैं। तो तुम इस कंडीशन में कह सकते हो ना कि जो बायोमास होता है, अगर तुम उसको ड्राई वेट में कंसिडर करो तो ये गेम उल्टा हो जाता है और ये इन्वर्टेड हो जाता है। इन्वर्ट बायोमास इस कंडीशन में एक्वाटिक। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। इस पेज में जो डायग्राम्स हमने इसको अच्छे से देख लिया। नेक्स्ट पेज में इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें यहाँ पे एनर्जी फ्लो के बारे में देखने को मिलने वाला है। सो द आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी, observe that the primary producers convert only 1% of the energy in the sunlight available them into the NPP। और NPP क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। नाउ इसने बोला क्या, और तुमने पता नहीं देखा भी होगा नहीं अभी तक। सपोज करो ये एनर्जी है सनलाइट का, बट जो तुम्हारा प्रोड्यूसर है उसके पास 10,000 जूल है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 10 लैक्स जूल है, और तुम्हें कितना मिल रहा है? 10,000 जूल मिल रहा है प्रोड्यूसर के पास। तो सन ने अगर 100% एनर्जी दी है तो प्राइमरी प्रोड्यूसर ने, यानी कि प्रोड्यूसर ने सिर्फ 1% एनर्जी की यूज की है। ठीक है, तो इस चीज को तुम्हें बस ध्यान में देना है। ठीक है, और उसके बाद अगेन ये 10% लॉ को फॉलो करेगा, 10% 10%, बिकॉज 10,000 से इसने 1000 हो गया, 1000 से ये 100 जूल हो गया, जैसे ऊपर जा रहा है टर्शरी लेवल्स में। सो बस कीप इन माइंड, जो सन होता है वो 100% अगर एनर्जी उसकी है तो ओनली 1% एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर होता है बाय द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और इसको तुम कर लो हाईलाइट। ऑब्जर्व दैट द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स कन्वर्ट्स ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू द एनपीपी। अब यहाँ पे एनपीपी टर्म को भी दिमाग में रखना, अपने भूल मत जाना। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Any calculation of energy content, biomass or number O has to include all organisms at that trophic level। हमें सारे ट्रॉपिक लेवल्स पे सारे ऑर्गेनिजम्स को कंक्लूड करना होता है। ऐसा नहीं तुमने किसी ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखो, नो जनरलाइजेशन वी मेक विल बी ट्रू if we take only few individuals at any ट्रॉपिक लेवल इनटू अकाउंट। सपोज करो कि 10 ऑर्गेनिजम्स थे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे, तुमने 2 को कंसिडर किया और तुमने अपना ग्राफ बना लिया, ये प्लॉट कर दिया पिरामिड। तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे कोई जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता बिकॉज वो इनकरेक्ट होगा, बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड ऑल। ऑल्सो गिवन ऑर्गेनिजम्स मे ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। ऑफकोर्स जैसे कि ह्यूमन्स ही हैं, वो डायरेक्ट प्लांट को भी खा लेते हैं और वो प्लांट ईटिंग एक गोट को भी खा लेते हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल को भी हो सकते हैं। सो वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल, not a species as such। So a given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time। ओके, तो अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, इसने क्या दे रखा देखो। तो तुम्हें ये पता रहनी चाहिए होती है, जो कि है एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, ये ट्रॉपिक लेवल्स जो हैं दे रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल। ओके, सो इस चीज को दिमाग में रख लो अपने। ऑल्सो अ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल in the same ecosystem at the same time। For example, a sparrow, a primary consumer। प्राइमरी कंज्यूमर कब? जब वो कोई सीड खा रहा हो और फ्रूट खा रहा हो, कोई चना खा रहा हो, एंड कोई कुछ भी खा रहा हो जो कि डायरेक्ट प्लांट से रिलेटेड है। बट वहीं स्पैरो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है जब वो किसी इंसेक्ट को खा लेता है, किसी वर्म को खा लेता है। सो इन द मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। बट यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे मोस्ट टर्म का यूज किया, ना ही कि ऑल का यूज करा है, बिकॉज अभी हमने पीछे वाले पेज में देखा ही था ना कि बायोमास का अपराइट नहीं था, इन्वर्टेड था इन द एक्वाटिक रीजन। तो इन द मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर हो, एनर्जी हो एंड बायोमास हो आर अपराइट। तुम्हें बस इस स्टेटमेंट को याद रखना है, इन मोस्ट एंड अपराइट। ओके, सो दैट इज द प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हार्बीवोर। ओके, प्लांट्स ज़्यादा है नंबर में हार्बीवोर के, और जो हार्बीवोर हैं वो ज़्यादा है नंबर किसके?
कार्निवोर के, और सिमिलरली इन बायोमास में भी हम बात कर सकते हैं। ऑल्सो एनर्जी जो होता है ट्रॉपिक लेवल जो लोअर है उनमें ज़्यादा होते होंगे एज कम्पेयर टू द हायर, बिकॉज 10% रूल भी तो है अपना। ओके, तो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज देयर आर एक्सेप्शंस इन दिस जनरलाइजेशन। अब उस एक्सेप्शंस को हम देखते हैं वो कौन से एक्सेप्शंस हैं। इफ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट feeding on a big tree, what kind of pyramid would you get? Now add an estimate of the number of small birds depending upon the insect, as also the number of much larger eating birds, the smaller, sorry, also the number of larger birds eating the smaller. अब यहाँ पे तुम एक ड्रॉ करो शेप को। ऑफकोर्स इसने सही बात बोली है कि सपोज करो एक बड़ा सा पेड़ है, वो नंबर में तो एक ही है वो ट्री, बट उस पर जो इंसेक्ट जो डिपेंडेंट है वो ज़्यादा है नंबर में, तो अपराइट कैसे होगा इस कंडीशन में नंबर्स का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने जो जनरलाइजेशन लिया था, और वो जनरलाइजेशन कौन सा था पहले ये तो पूछ लो, ये वाली जनरलाइजेशन कि जो मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम पिरामिड नंबर एनर्जी है वो अपराइट है, बट यहाँ पे एक्सेप्शंस भी इंक्लूडेड है, हमें बस यही पता करना था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप पैरा। The pyramid of biomass in sea is generally inverted because the biomass of fishes far exceeds the phytoplankton, and we have seen this point. Now the next point, pyramid of energy is always upright. यहाँ पे है कुछ जिसके पास कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि नंबर के पास एक्सेप्शन है, बायोमास के पास भी एक्सेप्शन है, बट व्हाट अबाउट द एनर्जी, यहाँ पे तो 10% रूल है। pyramid of energy is always upright, can never be inverted, because when energy flows from the particular tropic level to the next tropic level, some energy is really always lost as heat at each step. Now each bar of the energy pyramid indicates the amount of energy present at each tropic level in a given time or annually per unit time. यहाँ पे भी स्टेटमेंट क्रिएट हो सकते हैं। Okay, so let's move to the next page. However, there are certain limitation of ecological pyramids. अब वो जो limitations है उसको तुम highlight कर लो। वो does not take into the account of same species belonging to 2 or more tropic level. हमने ये तो देखा था कि एक इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिजम्स 2 ट्रॉपिक लेवल में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट तुम्हें जब इसको रिप्रेजेंट करना होगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स की तरफ से तो तुम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। डज नॉट टेक एन अकाउंट द स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल। इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता ना नेचर में, बिकॉज अब ऐसा थोड़ी है कि वो जो बकरी है, गोट है, उसको सिर्फ इंसान ही खाएगा, क्या पता उस बकरी को किसी वुल्फ ने खा लिया और फिर उसी इंसान को उस वुल्फ ने दोबारा खा लिया। तो यहाँ पे तो टोटल एक फूड वेव क्रिएटेड है। ओके, सपोज करो कि डिफरेंट कंडीशन है, तुम्हें क्राइटेरिया तुम सोचो तो अपने डेली लाइफ में देख सकते हो। ऑल्सो इट डज नॉट एकोमोडेट, यानी कि कॉम्प्रोमाइज करता है वो फूड वेव को, यानी कि वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करता, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब अगर तुम इस इकोलॉजिकल पिरामिड के नेचर से देखो तो, बट इन नेचर फूड वेव ही है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड चेन तो एक आइडियल सिचुएशन, आइडियल केस है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम इसमें पढ़ते हैं। मोर ओवर द सैप्रोफाइट, यानी कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, आर नॉट गिवन एनी स्पेस इन द इकोलॉजिकल पिरामिड्स इवन दो दे प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम। आई थिंक देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अगर कुछ है तो वो है डिकम्पोजिशन, बिकॉज यही है जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एनर्जी फ्लो, इस सब में भी ज़्यादा हेल्प करते हैं, बट इनको कोई जगह ही नहीं दिया गया, सोचो। तो ये भी एक इनका मेजर ड्रॉबैक है। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं समराइज फॉर्म में, जो कि हमें पता ही होगा। कोई यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मिलने से रहा, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी लाइन। ऑल्सो अब देखो टॉपिक से तो उसने हटा दिया है न्यूट्रिएंट साइकिल, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल सक्सेशंस, बस यहाँ पे समरी में उसने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं तो हमें उसको छोड़ना नहीं है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हम करें दोबारा। अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स जो हमने देख रखा है टेक्स्ट में उसको दोबारा करने से कोई फायदा नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको बस हाईलाइट कर लेते हैं। एन इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ठीक है, एंड इट इज कंप्रोमाइजेस एबायोटिक एंड बायोटिक। हमने देखा है एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग, और वो होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल, एयर, वाटर, सोयल। जो कि लिविंग होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। नाउ ईच इकोसिस्टम हैज अ कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल नेचर रिजल्टिंग इन द इंटरेक्शन अमॉन्ग्स्ट द बायोटिक एंड एबायोटिक। ये सारे हमने टेक्स्ट में देखे थे। स्पीसीज कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन आर द, देखो ये कर लो, स्पीसीज का कंपोजिशन और स्ट्रेटिफिकेशन आर द टू मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चूज द करेक्ट ऑप्शन या फिर स्टेटमेंट
में आ सकता है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द इकोसिस्टम ऑफ कोर्स। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इसने हमने पहले क्या देखा था, हमने उसका देखा था कि उसका फूड क्या है, वो क्या खा रहा है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है, बट यहाँ पे उसने फूड की जगह पे न्यूट्रिशन लिख दिया, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, बस उसने टर्म्स का एक्सचेंज करा है, तो हमें इस टर्म को भी जानना है। ओके, सो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द इकोसिस्टम। नाउ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज द प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रिएंट साइकिल आर द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो कंपोनेंट है जो इकोसिस्टम के हैं। नाउ जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी और अ बायोमास प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स वी हैव सीन दैट, और जो कि तुम्हारा जीपीपी और एनपीपी में कंसिस्ट होता है। नाउ इसके जो दो टाइप हैं, जो जीपीपी है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि टोटल के बारे में बातें कर रहा है, बट उसमें से जब तुम रिप्रोडक्टिव लॉसेस को सब्सट्रैक्ट कर लेते हो तो तुम्हें मिलता है एनपीपी, दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नाउ द रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी और द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज कॉल्ड द जीपीपी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको कर लो हाईलाइट। रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी और बायोमास और द एनर्जी लैब, सॉरी मैंने गलत लाइन उठा लिया। सो द रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी और टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज कॉल्ड जीपीपी, और एनपीपी इज द रिमेनिंग ऑफ द बायोमास ऑफ एनर्जी आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि रेस्पिरेटरी लॉसेस जो भी थे। नाउ the secondary productivity is the rate of assimilation of food energy by the consumers, because ये assimilation term तो नहीं दे रखा था ना अपने टेक्स्ट में, so highlight this, secondary productivity जो होता है is the rate of assimilation of food energy by the consumer. Now in decomposition complex organic compounds of detritus are converted into CO2, यानी कि inorganic में convert हो रहे हैं, water हो या inorganic nutrient हो, किसकी वजह से, because of the decomposers. Now decomposition involves the three process, namely fragmentation, detritus, leaching and catabolism. बोल रहा है 3 लेकिन दे रखा है 4, ये क्या है, सॉरी हाँ फ्रेगमेंटेशन एक ही दे रखा। देखो यहाँ पे कितना इतने इंपॉर्टेंट इसने बोल दिया, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है। देखो डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेस, अगर ये क्वेश्चन में आता तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द बच्चे बोलते गलत 5, हम उसमें कैलकुलेट करते ह्यूमिफिकेशन को और मिनरलाइजेशन को, बट यहाँ पे उसको इन्वॉल्व नहीं करा गया। और यहाँ पे जो 3 प्रोसेस हैं, दे आर नेमली द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डेट्रिटस जो कि करते हैं अर्थ फॉर्म, देन हम देखते हैं लीचिंग यानी कि वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स थे वो जाके अनएवेलेबल सॉल्ट्स को खत्म कर देते, जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे प्रेसिपिटेट हो जाते, और जो नेक्स्ट था वो था कैटाबॉलिज्म, और इसके बाद हम पढ़ते थे ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन के बारे में। तो वो कोई प्रोसेस नहीं है, वो एक सिचुएशन है जो कि क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ दिस। ओके, सो कीप इन माइंड ये होते हैं 3 प्रोसेस, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म। तो तुम यहाँ पे लिख लो डिकम्पोजिशन 3 प्रोसेस, और 3 प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन, leaching and the catabolism. Now energy flow is a unidirectional. First plant captures solar energy and then food is transferred from the producer to the decomposer. Now organisms of different trophic level in nature are connected to each by the food or the energy relationship, forming a food chain. Now the storage, sorry, सही है, the storage and the movement of nutrient element through the various components of the ecosystem are called the nutrient cycle. इसको कर लो तुम अंडरलाइन, बिकॉज उसने टॉपिक तो हटा दिया बट इंडेक्स सॉरी समरी में तो दे रखा ना, ये क्या पता यहाँ से डेफिनेशन क्रिएट हो जाए, क्वेश्चन बन जाए। सो कीप इन माइंड द स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। नाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिपीटेडली यूज्ड थ्रू दिस प्रोसेस। जो दूसरा स्टेटमेंट है, इसके सारे स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टेक्स्ट में नहीं था। न्यूट्रिएंट साइकिल आर ऑफ 2 टाइप्स, पहला है गैसियस और दूसरा है सेडिमेंट्री। ओके, एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर इज द रिजर्वोयर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ साइकिल जो कि है कार्बन। तो इसको तुम लिख ही लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये तो सारे के सारे हो गए इंपॉर्टेंट नहीं ना, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में हम देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट
साइक्लिंग। तो इसमें क्या था, टू टाइप्स के थे, गैसियस, ये रहा हमारा फर्स्ट टाइप, और ये रहा हमारा सेकेंड, और वो कौन सा था, सेडिमेंट्री था ना, हाँ सेडिमेंट्री। नाउ जो गैसेस के बारे में है वो देखो, एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर इज द रिजर्वोयर ऑफ द गैसेस टाइप ऑफ। तो यहाँ पे एटीएम एटमोस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर यानी कि जो वाटर बॉडीज हैं ये होते हैं रिजर्वोयर ऑफ एनर्जी ऑफ द गैसेस, बस इतना ही लिख लो। और इसका जो साइकिल होता है, एग्जाम्पल हो सकता है गैसियस का, दैट इज द कार्बन साइकिल कह सकते हो। वेयर इज द अर्थ क्रस्ट इज द रिजर्वोयर ऑफ द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ फॉस्फोरस। अब सेडिमेंट्री का जो रिजर्वोयर होगा वो होगा अर्थ क्रस्ट, रिजर्वोयर जो है दैट इज द अर्थ क्रस्ट। नाउ इसमें भी एग्जाम्पल दे रखा होगा ना इसका, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फॉस्फोरस इसका एग्जाम्पल, दैट इज द phosphorus cycle. Now keep in mind phosphorus cycle is the example of the sedimentary nutrient cycle, whereas the carbon is the example of the gaseous nutrient cycle. Now the product of ecosystem process are namely as the ecosystem services, that is the purification of air and water by the forest. तो ये एक क्या बोल सकते हैं, ब्रॉडर व्यू है हमारा देखने का कि हम इसका जो होता है ना प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है प्रोसेस का, तो हमें वो इकोसिस्टम एक सर्विस के रूप में हमें वो देता है, जिससे वो हमारे एयर को प्यूरिफाई करता है, हमारी वाटर को क्लीन करता है, हमारे सोयल को वो मेंटेन करता है। ओके, सो दीज आर द टोटल थिंग्स जो भी था हमारे सिलेबस में, एंड दिस वाज द न्यू एडिशन। यहाँ पे तुम देख लो 2024 एंड 25। सो हियर वी कैन से दैट आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्रिएट होते हैं, एंड इकोलॉजी में अब टोटल 3 चैप्टर रह गए हैं और उससे सपोज करो 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं इकोलॉजी पोर्शन से। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इसको तुम ठीक से कर लो। So at last I want to say only one thing. Thanks for watching the video and do like, comment the portion तुम्हें जो ठीक लगा या तुम चाहते हो कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ न्यू चाहिए तुम्हें, and subscribe. So thanks for watching. Bye.